أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عزاءهم واحشرنا معهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وصل اللهم بيننا وبينه صلة تؤدي إلى مرافقة سلفك اللهم سبح لي عن الهموم والأمور ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان يا ابن الحسن 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 عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكثاء اليماني فغطيني به فأتيته بالكثاء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن
قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. الله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. الله. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. الله صل على. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي أن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. للنبي دروب محمد وآل محمد. ईमान की तस्वीर नजर आती है
तस्वीर नजर आती है, कुरान की तफसीर नजर आती है। अल्लाह तेरे घर की फिज़ाएं ज़हरा, अल्लाह तेरे घर की फिज़ाएं ज़हरा, तत्हीर ही तत्हीर नजर आती है। ईमान की तस्वीर बर मोहम्मद और मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आए तत्हीर के मकसद का महवर फातिमा, आए तत्हीर के मकसद का महवर फातिमा, यानी शज़मत नूरे पैगंबर फातिमा, आए तत्हीर के इनसे फैला दीन हक, इनसे बड़ी नस्ल रसूल, इनसे फैला दीन हक, इनसे बड़ी नस्ल रसूल। एक कौसर है अली और एक कौसर फातिमा, आए तत्हीर के कश्तिए दीने खुदा की, ना खुदा साबित हुई कश्तिए दीने खुदा की, ना खुदा साबित हुई। शबरो शबीर जैसे दी कलंगर फातिमा, नाम है तस्बीह ज़हरा, काम तस्बीह खुदा, नाम है तस्बीह ज़हरा, काम तस्बीह खुदा। जिक्र तेरा जिक्र हक अल्लाहु अकबर फातिमा, आए तत्हीर के बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खा लो के भूखे मैं बोले के चैन देगा ज़माना तो खाएंगे, अम्मा में खिलाए
समीप पे के चिराई बार बार। बच्चे हैं इनको सब्र दे मेरे के देगा। अब वो खिलाने वाली कहाँ तुम पर मैं प्यारो तुम्हारी पालने वाली गुजर गई। खाओगे किसके हाथ से अम्मा तो मर गई। खाओगे किसके हाथ से अम्मा तो मर गई। शेर खुदा थे मुज़तरो मग़मूम सर पीटती थी ज़ैनबो कुलसूम पकड़े थे दिल को सैयदे मसमूम बिस्मिल खाक पर शहे मज़लूम हैदर करीब आए तो एक खत नज़र पड़ा। घर पे कुछ सरहा के अमामा उतर पड़ा। लिखा था ये कि आखिरी ज़हमत कबूल हो या शाह तुम वसीए जनाबे रसूल हो। सदका हुजूर का मेरा मकसद हुसूल हो। मुँह से न कह सकी के हज़ीनो मलूल हो। मेरी वसीयतें ना फरामोश कीजियो। अव्वल ये है कि आप मुझे गुस्ल दीजियो। दोयम ये है कि शब में जनाजा उठाइयो। मुर्दे का साया बिना किसी को दिखाइयो। यहाँ तक के कब्र बिना किसी को बताइयो। 100 जगह निशान लाद का बनाइयो। सोयम ये है कि पास यतीमों का कीजियो। शफकत से बोलियो कभी गुड़ की ना दी। शफकत से बोलियो कभी गुड़ की ना दीजियो। बाबा को रोते रोते जो और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल-फातिहा। اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم وسيحته الجنة وحشود محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والخاتم النبيين جد الحسن والحسين أبا القاسم مصطفى
मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वलादुल्लाहु लान क़तलतक फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वलादुल्लाहु कुन फ़ज़मलाऊन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहि तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल क़ुरआनिल करीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्हुम अर्रिज्सा अहलुल बैति व युत्तहिरहुम तत्हीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज की हम मजलिस का आगाज़ दुआए सलामती नाम ज़माना से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिका हुज्जत इब्ने हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न नासिरा व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़क तय्यबा फ़ीहा तनज़ुलु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। मिट्टी नजफ से लीजिए पानी फुरात से, मिट्टी नजफ से लीजिए पानी फुरात से, फिर तुरबते बतूल पे रोज़ा बनाइए। अज़ीज़ान मुहतरम, आज जिक्र उन बीवी का है जो बाद में रसूल है, जो बाद में रसूल है और बाद में वतूल है। आज जिक्र उन बीवी का है। अज़ीज़ान मोहतरम, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़कत फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा नहीं है, फ़ातिमा उस चीज़ का टुकड़ा है जो मैं हूँ। जो मैं हूँ, फ़ातिमा उस चीज़ का टुकड़ा है। फ़ातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। रसूल अल्लाह रसूल है, फ़ातिमा रिसालत का टुकड़ा है, वो नबी है, फ़ातिमा नबूवत का टुकड़ा है। और आप शफ़ाअत यौम जज़ा है, फ़ातिमा शफ़ाअत का टुकड़ा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तमाम अंबिया 1,24,000 अंबिया, 12 इमाम अल्लाह ने मर्दों के लिए उसवा हुस्ना बना के भेजे, आइडियल बना के भेजे। तो अल्लाह ने सोचा कि एक किरदार ऐसा भी हो कि जो कि ख़वातीन के लिए भी उसवा हुस्ना हो, आइडियल हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कह दिया कि ए मरियम, हमने आपको चुन लिया है और हमने आपको पाक रखा है। अब औरत की जिंदगी में कई पहलू हैं औरत की जिंदगी में कि
पहला पहलू जो है एक माँ का रिश्ता, ज़ौजा का रिश्ता, बहन का भाई से रिश्ता, एक बहन का रिश्ता, एक बेटी का रिश्ता। कई पहलू हैं इंसान, कई पहलू हैं औरत की जिंदगी में। तो रहा कि मरियम को अल्लाह ने चुन लिया है और हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ने पूरी दुनिया की ख़वातीन के लिए उसवाए हसना बना के भेजा, आइडियल। जब आइडियल बना के भेजा तो कहा कि आप जनाब मरियम को सिर्फ ज़ौजियत नहीं मिली, औरत की एक असल मेराज जो है वो ज़ौजियत है। आपको ज़ौजियत नहीं मिली कि अगर एक ज़ौजा होती तो कैसी होती, कि अगर ज़ौजा होती तो कैसी होती। आपको एक मिसाली माँ का रुतबा मिला है कि एक मिसाली माँ कैसी होती है, आपको एक मिसाली माँ का रुतबा मिला। अब अल्लाह ने कह दिया कि मरियम मैं एक और बीवी भेजूंगा जो कि आपके लिए भी फख्र होंगी, जो फख्र मरियम है उनका नाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। उनका नाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अकरम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे घर में बेटा हो तो नेमत, अगर बेटी हो तो रहमत, और रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का नाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। रहमतुल लिल आलमीन की कि जब कुल्ले ईमान के और कुल्ले ईमान से शादी होकर आई तो कुल्ले ईमान को नफ्स से ईमान बना दिया, कुल्ले ईमान को नफ्स से ईमान बना दिया। पैगंबर इस्लाम का कौल है कि तुमने शादी करके अपना आधा ईमान, जिसने शादी करी उसने अपना आधा ईमान बचा लिया, उसने अपना आधा ईमान बचा लिया। शिया सुन्नी दोनों मौरिख की किताबों में लिखा है कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। शिया और सुन्नी दोनों मौरिख की किताब में लिखा है कि जन्नत तुम्हारे माँ के पाँव तले है, और जो जवानाने जन्नत के सरदारों को पाल ले उनकी जन्नत भी फातिमा ज़हरा के पाँव में है। बात आ गई जाने मोहतरम कि जो कि जवानाने जन्नत के सरदारों को पाल लो ना फातिमा ज़हरा कहते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, जनाब फातिमा ज़हरा पे मेरा सलाम है, मेरा सलाम है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे। फातिमा ज़हरा तो निस्बतों तक मंसूब नहीं है, फातिमा ज़हरा तो तारुफ है हस्ती होना कि जब तमाम किस्सा के नीचे जमा हो गए, जब तमाम किस्सा के नीचे जमा हो गए तो मलाइका ने खुदावंद आलम से पूछा कि ए खुदावंद आलम ये कौन है। तो अल्लाह का अंदाज़ तारुफ देखिए जनाब सैयदा के लिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तारुफ नहीं किया, तारुफ नहीं किया, और अमीरुल मोमिनीन के हवाले से तारुफ नहीं किया, और हसनैन अलैहिस्सलाम के हवाले से तारुफ नहीं किया। तारुफ किया तो कैसे किया? फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनूहा। अब फातिमा ज़हरा का तारुफ देखिए कि फातिमा ज़हरा का इखलाक है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आती है, जब कलाम करती है तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नजर आती है, और जब उम्मत की बेवफाई पे फैसले करती है तो इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम मालूम होती है।
और जब दुश्मन से जंग लड़ने के लिए मैदान में उतर आती है तो हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मालूम होती है। सब्र है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अक्स बन जाती है। और इल्म इमाम मोहम्मद बाक़र जैसा, सदाकत इमाम जाफर सादिक जैसी, क़ुव्वत बर्दाश्त इमाम मूसा काज़िम जैसा, तक़वीम रज़ा इमाम अली रवा जैसा, तक़वा इमाम मोहम्मद तक़ी जैसा, पाकीज़गी इमाम अली नक़ी जैसी, जलाल रहमानी इमाम सरकार हसन अस्करी जैसा। और इरशाद करती है तो हज़रत हुज्जत हज़रत महदी अलैहिस्सलाम का बन जाती है। ये है फातिमा ज़हरा जो कि तारुफ है हस्तियों का। ज़ाहिर मोहतरम ये है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जब फातिमा ज़हरा आती थी ना, तशरीफ लाती थी तो रसूल अकरम तक़रीबन मलंद हो जाया करते थे। तो ये नहीं कि बाप बेटी के एहतराम में हला हो रहा है, ये है कि रिसालत इस्मत फातिमा के लिए बुलंद हो रही है। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा बुलंद हो रहे हैं तो क्या आदम अलैहिस्सलाम बैठे रहेंगे, नूह अलैहिस्सलाम बैठे रहेंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे रहेंगे, मूसा और ईसा बैठे रहेंगे? इसका जवाब है नहीं। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा बुलंद हो रहे हैं तो 1,24,000 रिसालत ताज़ीम फातिमा में खड़ी हो जाएगी। अब पता चला, समझ में आया कि जिसकी ताज़ीम में 1,24,000 अंबिया खड़े हो रहे हैं उन्हें शरीयत में सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। बात वाज़ेह हो रही है कि मैं आपके खिदमत में एक वाक़या अर्ज़ करता चलूँ। सलावत पढ़े मोहब्बत वाले मोहब्बत। जनाब फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा अपने नवासी और अपनी कनीज़ के साथ सफ़र में जा रही थी। जब वो सफ़र में जा रही थी तो उनसे किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कुरान से जवाब दिया। अब किसी ने उनकी कनीज़ से पूछा कि कौन है खातून जो कि कुरान के सिवा कोई जवाब ही नहीं देती? कहा ये जो है ये कनीज़े फातिमा ज़हरा जनाब, ये कनीज़ा फातिमा ज़हरा जनाब फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा है कि जिनकी कनीज़ कुरान के सिवा कुछ बात ही नहीं करती, उनको फातिमा ज़हरा कहते हैं। हुब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम है कि हुब्बत फातिमा है। अज़ीज़ान मुहतरम, हुब्बत फातिमिया है तो आपको यहाँ इस फर्श अज़ा पे लाके बिठा देती है कि मोहब्बत है जो एक चीज़ आपको यहाँ जमा करके बिठा देती है। कोई तो है, कोई चीज़ है जो आपको यहाँ जमा कर रही है। अज़ीज़ान मुहतरम, वो है मोहब्बत। अब मोहब्बत को मैं कुछ इस तरह डिफाइन करता हुआ, अगर आपको मुझसे मोहब्बत होगी तो आपको मेरे दुश्मन से मोहब्बत नहीं होगी। अगर आपको मुझसे उल्फियत होगी तो आपको मेरे दुश्मन से उल्फियत नहीं होगी। अगर आपको मुझसे ज़रा सा भी इश्क होगा
चलेगा। ये है मोहब्बत। ये मोहब्बत ये है कि अगर आपसे कोई कहे कि आप कराची से हैदराबाद पैदल चल के चले जाओ, हैदराबाद दूर की बात है, आप कराची यहाँ चोली से सीव्यू तक पैदल चले जाए, कुछ लोग हो गए तो चले जाएंगे, लेकिन जो अक्लमंद हो गए कि भाई गाड़ी है, बाइक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो पैदल क्यों जाऊं। अब आप आ जाइए वादी करबला के अंदर कि लोग सैकड़ों मीलों से चल के हुसैन के लिए आते हैं। जितनी भी थकावट होती है ना, जब पहली नजर रोज़ा हुसैन पे जाती है तो वो सारी थकावट दूर हो जाती है। ये है मोहब्बत हुसैन इब्न अली। जितनी भी थकावट होती है वो दूर हो जाती है। यही है मोहब्बत हुसैन इब्न अली की कि लोग सैकड़ों दूर मीलों से चल के आ रहे होते हैं। कोई कूफा से आ रहा है, कोई नजफ से आ रहा है, कोई बसरा से आ रहा है, कोई बलद से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। लेकिन मोहब्बत क्या सिखाती है? मोहब्बत सेल्फ कंट्रोल सिखाती है। मोहब्बत दर्द को खत्म करना सिखाती है। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत अहले बैत। जब हम सब यहाँ जमा होके आए हैं तो यहाँ यकीनन हमारे दरमियान हमारे वक्त के इमाम भी मौजूद होंगे। वो आज तकदीर वफा का दिन है, हमारे वक्त के इमाम यहाँ मौजूद होंगे और हमारे वक्त के इमाम के लिए हम क्या तोहफा लाए होंगे? सबसे बेहतरीन तोहफा है आज हम इमाम ज़माना को उनकी दादी का पुरसा देंगे। ये दिन ज़हरा के बेटे हुसैन की यतीमी के दिन है। ये दिन सैयदा ज़ैनब की यतीमी के दिन है। मेरा सलाम हो ज़ैनब की यतीमी पे, मेरा सलाम हो हुसैन की यतीमी पे। अज़ीज़ाने मुहतरम, अजीब कैफियत होती है कि जब ये जुमला पढ़ा जाए कि परवरदिगारा किसी बच्चे को बचपन में माँ का जनाजा ना दिखाए, किसी बच्चे को बचपन में माँ की झुकी हुई कमर ना दिखाए, किसी बच्चे को बचपन में माँ के चेहरे की नील ना दिखाए। बड़ी अजब यतीमी है अहले बैत के घरानों की। बड़े बच्चे यतीम हुए हैं। जब किसी ने तहरीर फाड़ी ना, जब जनाब सैयदा दरबार से आ रही थी, किसी ने तहरीर फाड़ दी तो आप रो के कहने लगी तुमने मेरा हक खाया है, तुमने मेरा हक खाया है। याद रखना, तुमने आज मेरा हक खाया है। मेरा बेटा मेहदी आएगा। यहाँ पे जनाबे इमाम ज़माना का शराई तारुफ करवाया, कहा मेरा बेटा मेहदी आएगा। घर में मुश्किल कुशा है, घर में मुश्किल कुशा है। हसन हुसैन जैसे बेटे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हवाला इमाम ज़माना को दिया कि मेरा बेटा मेहदी आएगा, वो तुमसे मेरे एक एक जुल्म का बदला लेगा, तो तुमसे मेरे एक एक जुल्म का बदला लेगा। जब इमाम हसन से किसी ने कहा ना कि मौला आप हमेशा तवील रास्ते से मस्जिद जाते हैं, आज इस गली से चले जाइए, ये कुछ नजदीक है मस्जिद से। मेरे मौला ने गिरिया करना शुरू किया। कहा मौला गिरिया क्यों कर रहे हैं? कहा इस गली में उस लाइन का घर है कि जिसने इस गली में उस लाइन का घर है जिसने अम्मा में चलता हुआ दरवाजा गिराया।
अज़ीज़ान मुहतरम, इमाम हसन हुसैन यतीम हो रहे हैं। जब दरवाज़ा पुरफुल ने जलाया और जब ठोकर मारी ना, जब लात मारी तो फातिमा दरवाजे और दीवार के बीच में आ गई और कहा, फिज़ा मेरा मुहसिन शहीद हो गया, कहा फिज़ा मुझे संभालो। अज़ीज़ान मुहतरम, ये दिन हुसैन यतीमी के दिन है। हसन हुसैन यतीम हो रहे हैं। जब शहजादी ने वसीयत की ना तो कहा, या अली मेरा जनाजा रात में उठाइएगा, रात की तारीकी में मेरे जनाजे में उन लोगों को बुलाइएगा जिनको मेरे रोने से तकलीफ थी, मेरे जनाजे में उनको ना बुलाइएगा। अज़ीज़ान मुहतरम, और मौला से कहा कि या अली आप मुझे उसूल दीजिएगा। तारीख में 3 जनाजे हैं कि जिनके बदन बहुत जख्मी था। जानते हैं तारीख में पहला जनाजा कौन सा है? पहला जनाजा है कि इमाम मोहम्मद बाकर उसूल दे रहे हैं। इमाम सज्जाद को जब पुष्प पानी डालने के लिए करवट दी ना तो कहते हैं कि आप मौला ने जमीन में फेंक दिया। जब आप जमीन पे फेंक दिया ना, जब आप जमीन पे फेंक दिया तो पूछा, मौला आप गिरिया क्यों कर रहे हैं? कहा, मेरे मामा की गर्दन पर तौक के निशान है, मेरे मामा की गर्दन की खाल उतर गई है, गोश्त नजर आता है, पीठ पे तालियानों के निशान है। दूसरा जनाजा जानते हैं कौन सा है? रात की तारीकी है, एक जिंदान है और एक छोटा सा लाशा है। जनाब ज़ैनब ने कहा कि सज्जाद, मैं सकीना को उसूल कुर्ता उतार के दूं या कुर्ते समेत दूं? मौला ने कहा, फूफी अम्मा कुर्ता मत उतारिएगा। कहा, फूफी अम्मा कुर्ता मत उतारिएगा, मेरी महल के जिस्म पे इतने जख्मों के निशान है, या अल्लाह, कि इतने जख्मों के निशान है। और अब तीसरा जनाजा जानते हैं कौन सा है? जब मौला उसूल दे रहे थे ना तो शहजादी ने अपने पहलू पे से हाथ ना उठाया तो कहा, फातिमा वाजिब है पूरे जिस्म में पानी डालना। जब पहलू पे से हाथ उठाया तो अली ने चीख मारी और अपनी पेशानी दीवार में मारी, अपनी पेशानी दीवार में मारी। और जनाब फिज़ा भागते हुए आई और कहने लगी, क्यों मौला, मैंने आपको कभी ऐसे रोते हुए नहीं देखा, खुदा के शेर भी कभी रोते हैं। कहा, फातिमा ने मुझसे अपना ज़ुहर छुपाया, फातिमा के पहलू की तमाम पसलियां टूट चुकी थी। अज़ीज़ान मुहतरम, शेख अब्बास कुब्बी लिखते हैं कि जनाजा तैयार हुआ। जब जनाजा तब तैयार हुआ तो कहा, ये फिज़ा बच्चों को बुला लो कि माँ से विदा कर ले। जब जनाब फिज़ा ने आवाज दी ना, बच्चों माँ से विदा कर लो, तो सबसे पहले जनाब ज़ैनब जनाब उम्मे कुलसूम का हाथ पकड़ के लाए, फिर इमाम हसन आए, फिर इमाम हसन आए। कहा, फिज़ा मेरे दिल का चैन हुसैन नहीं आया। कहा कि मौला हुसैन कह रहे हैं कि अगर मेरी वालिदा फखरे मरियम है तो मैं भी फखरे ईसा
परवरदिगारा हमारी इस आज की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर फरमा और खुसूसन हमारे नमाज के साथी जनाब वक़ीर हुसैन राफी को जल्द से जल्द शिफाए कामिल आजिल अता फरमा और जितने भी ज़ख्मी हैं उनको जल्द से जल्द शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। खुसूसन फ़लस्तीन, गज़ा, पारा चनार या मोमिनीन की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल अन्ता समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन अलैहिस्सलाम। तेरी उम्मत ने मेरे दर को जलाया बाबा है। तेरी उम्मत ने मेरे दर को जलाया बाबा है। तेरी उम्मत ने मेरे दर को जलाया बाबा। फिर वो जलता हुआ दे, फिर वो जलता हुआ दे मुझ पे गिरा बाबा। तेरी उम्मत ने मेरे दिल को जलाया बाबा हो। तेरी उम्मत ने मेरे दर को जलाया बाबा। राखती शोले पे से मैं वो बचे दूँ। मेरे आंगन में था एक शाम गरीबों का समा। डर हटा कर मुझे फैज़ान उठाया बाबा। तेरी उम्मत ने मेरे घर को जलाया बाबा हो। तेरी उम्मत ने मेरे दर को जलाया बाबा। लौट कर आई तो चेहरा मेरा ज़ख्म था। मेरी ज़ैनब को मेरी पेशी का पहला नौगा। मेरे बालों की सफ़ेदी में सुनाया बाबा। तेरी उम्मत ने मेरे दर को जला मिलके बाहो। तेरी उम्मत दर को जला ले चलो कैद बना कर जो अली को दुश्मन। मैंने छोड़ा नहीं गदर की अबा का दाना। ताज़ियानों ने मगर मुझसे छुड़ाया बाबा। तेरी उम्मत ने मेरे दर को जला। तेरी उम्मत ने मेरे दर को जला। कौन सा दो है जहाँ आपकी बेटी मिल गई। बात सुनना तो पुजायूं हुई इज्जत मेरी। कोई दरवाज़ों से बाहर नहीं आया बाबा। तेरी उम्मत ने मेरे दर को जलाया। तेरी उम्मत ने मेरे दर को जलाया। ज़ख्मी हालत में भी दहलीज़ से बाहर आई और वलीउल्लाह बचा कर लाई।
ऐसी गुर्बत थी के हाथों में सितंगारों ने रस्सियाँ बांध के दर को फुलाया बाबा, उम्मत ने मेरे दर को जलाया बाबा, तेरी उम्मत ने मेरे दर को जलाया बाबा। जिस जगह तुमने रुक के इजाजत मांगी, वहाँ गुस्ताख मुसलमानों ने बात मांगी। कोई शोले तो कोई लकड़ियाँ लाया बाबा, तेरी उम्मत मेरे दर को जलाया, तेरी उम्मत मेरे दर को जलाया। अर्श अरफश पर अकबर ने बताया, जिस गरीबों के विलायत की शहीदान कहा, मुझको हंस हंस के ज़माने में रुलाया बाबा, तेरी उम्मत ने मेरे दर को जलाया बाबा, तेरी उम्मत ने मेरे दर को जलाया बाबा। या ज़ाहरा ज़ाहरा या ज़ाहरा 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 या ज़ाहरा, है मेरी बीबी, है मेरी बीबी, तेरे दर पे इस्तग़ासा है, तेरा नमून मेरी शहज़ादी जहाँ सारा। या ज़ाहरा या ज़हरा तू हमें ज़रमा दे दे, अपनी चादर का साया दे दे, तेरी कुदरत में क्या नहीं बीवी, तू जिसे चाहे दो जना दे दे। क्या मेरी बीबी, मेरी बीबी, तू सखी है तेरे बच्चे एक राही, गवाही में जब ये सारा है। या ज़ाहरा फर्श मजलिस पर मुसल्ले पर हर जगह कह रहा है रो रो कर, हम रहना रहे मगर बीबी, ता क़यामत रही हमें सरवरे। बस तू ही मुराद देती है, तेरी चौखट मेरे वाली का इस्तिग़ासा है। ज़हरा 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 कर्ज़ मक़रूज़ का अदा कर
कर दे, मुफलिसों का नसीब वा कर दे, जिनकी गोदी भरी नहीं बीवी, उनको औलाद तू अता कर दे। ज़हरा इश्क़ हम तेरी अमानत है, तेरी औलाद के गम ने हमें सवारा है। या ज़हरा या ज़हरा ज़हरा या ज़हरा। तुझे ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाइसल हुदा, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाहिस सक़लैन, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरल मुमिनीन व इब्न सय्यदिल वसिय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनल दुअफ़ा वल फुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस अय्युहल मदफून बिअर्द तूस, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरब वल अजम, या अली इब्न मूसा रिज़ा अर्राज़ी बिल क़दर वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या स्वाहिबल अस्रि वज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका या मुहाफ़िज़ल इस्लाम, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिक व अवानिक जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हज़रत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला